So good morning, everyone. So we have already understood what is financial management and what are the three important decisions that it will be taking care of, and that is investment decision, financing decision and dividend decision. आज हम उन्हीं सारे टॉपिक्स को एक बार फिर से पढ़ेंगे, थोड़े से और डिटेल में पढ़ेंगे. I hope that whatever that we have discussed yesterday, you remember it as of now, right? So let's start the chapter. Okay. यहाँ पे मैंने लिखा है चैप्टर का नाम बिजनेस फाइनेंस. कई सारी बुक्स में आप देखते हैं इसका नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी लिखा हुआ है. दोनों केसेस में फर्क कुछ भी नहीं है. वी आर रेफरिंग टू द सेम चैप्टर. ओके, सो व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? सो बिजनेस फाइनेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, यहाँ बताया जा रहा है कि फाइनेंस is basically treated as an indispensable part of the organization. That means anybody who is doing business will be requiring funds, right? और फंड्स के बिना आप बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं. इसीलिए मनी विच वी आर यूजिंग in the business for the purpose of running its operation is known as business finance. Let's read it. Money or funds available for a business for its operations, that is for the specific purpose, is called finance. और फाइनेंस आप सबसे पहली चीज देखेंगे, फाइनेंस इज लिखा होता है कि फाइनेंस इज द लाइफ blood of the organization, which is very correct, because without finance we cannot think of operating even for a single day, right? It is indispensable for survival and growth of the business, for production and distribution of goods, and for meeting the day-to-day expenses. That means everything that we are going to do, it is impossible without finance. And finance here we mean funds. And funds, अगर मैं narrow terms में बात करूं तो it is called money. That means cash either in hand or cash at bank, which is also called cash and cash equivalents, right? मगर जब हम बात करते हैं in broader sense, तो funds का मतलब होता है working capital. That means the excess of current assets over current liabilities. It is called fund, right? इसके आगे देखते हैं, it involves acquiring funds to buy fixed assets, whether tangible and intangible, and maintaining working capital. So funds are required by the business at each and every point of time, because without the funds we cannot operate, or we cannot run our even single operation. Okay, आगे बढ़ते हैं. What is financial management? जैसा मैंने आपको कल बताया था, फिर से बता रही हूँ. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस. ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट मींस वी हैव टू डिसाइड कि हम किस सोर्स को यूज करके अपने फाइनेंस को रेस करेंगे. whether we'll be using debt, whether we'll be using equity. अगर मैं डेट को यूज करती हूँ तो उसमें कितना रिस्क है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ माय बिजनेस. अगर मैं इक्विटी को यूज कर रही हूँ तो इक्विटी को यूज करने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी. मैंने आपको कल भी बताया था, फिर से बता रही हूँ कि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कंपेयर टू इक्विटी, because equity has a lot of flotation cost which has to be incurred for raising funds using equity, whereas debt can be through debt we can raise the funds very easily and in a very cheap manner. And secondly, as compared to equity, debt is considered as more risky. That means when we borrow fund using debt instrument, so we are incurring some amount of risk of repayment of interest on time, repayment of principal amount on time, because if we are going to get default in the payment, so in that sense, in that case, the people who have invested in our business in form of debt instrument or through debt instruments, they are going to recover their amount due by selling off the assets on which they are already having a claim, right? So this is why it is considered as more risky, although it is cheap, and equity is considered as expensive, but it is less risky, right? Okay, आगे पढ़ लेते हैं. For optimal procurement, different available sources of finance are identified and compared in terms of their cost and risk. I hope that you are able to understand the meaning of these three lines which are written here. Okay, आगे देखते हैं. Similarly, finance so procured needs to be invested in a manner that the returns from the investment exceeds the cost at which the funds has been procured. मैंने कल भी आपको बताया था कि जो भी हम फंड जिस भी सोर्स को यूज करके रेस करते हैं, चाहे फिर वो डेट हो या फिर इक्विटी हो, उसके अंदर हर एक सोर्स की अपनी एक कॉस्ट है. जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डिविडेंड,
cost of retained earning is again dividend, right? Then cost of debt is interest. तो ये सब जो चीजें हैं उन सब की कॉस्ट है जो आप पे करने वाले हैं. आप जहां भी आप जो पैसा आपने रेस किया है, जो फंड्स आपने रेस किया है, उसको आप जहां भी इन्वेस्ट करेंगे, चाहे आप शॉर्ट टर्म में यानी कि वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए इन्वेस्ट करें, या फिर आप उसे इन्वेस्ट करें फिक्स्ड असेट्स के अंदर, विच इज कॉल्ड योर लॉन्ग टर्म डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वेरी कॉमनली नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन. जहां भी इन्वेस्ट करेंगे आपको इंश्योर करना होगा कि जितना कॉस्ट आप इनकर कर रहे हैं उससे ज्यादा उसका बेनिफिट मिलना चाहिए. मतलब अगर मैं 100 रुपए की कॉस्ट इनकर करूंगी against the fund that I am using and I have raised, I should at least generate 101 rupees of return from that investment. अगर इतना नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट आपको करने का कोई मतलब नहीं बनता. ये बेहतर रहेगा कि आप वो इन्वेस्टमेंट करें ही नहीं, क्योंकि फिर वो लॉस हो जाएगा, राइट? इसीलिए आप लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट नहीं प्रेफर करेंगे और आप ध्यान रखेंगे कि जहां भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो आपकी कॉस्ट को रिकवर करना चाहिए और उससे ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए, राइट? So this is what the second point is saying. Anybody having any doubt, please write it down in the chat box. Okay. Anybody having any doubt? Nobody is having any doubt. Okay, that's great. I think कल का सबने अच्छे से पढ़ लिया है. चलिए आगे चलते हैं. Next is financial management aims at reducing the cost of funds procured by selecting the optimum capital structure. बहुत अच्छी बात बताई गई है यहाँ पे. कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं बताती हूँ क्या होता है वो. कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हर एक बिजनेस जो अपनी कैपिटल को रेस कर रहा है, चाहे फिर वो इक्विटी के थ्रू रेस करे या फिर डेट के थ्रू रेस करे और प्रेफरेंस शेयर के थ्रू रेस करे और रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू रेस करे, तो अगर मैं मान के चलूं कि ये 4 मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू मैं अपने कैपिटल को रेस कर रही हूँ, जिसमें हमेशा याद रखिएगा इक्विटी सबसे ज्यादा रहेगी. कभी भी ये मत सोचिएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन डेट के थ्रू गवर्न की जा सकती है. ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विटी रिफ्लेक्ट्स द ओनरशिप. जब तक ओनरशिप नहीं है, how will the bank give the loan or how will the people invest in the debt instrument? They will not invest. इसीलिए बहुत जरूरी होता है ये समझना और याद रखना कि डेट के थ्रू आप मैक्सिमम 49% ही आप रेस कर सकते हैं. 51% will always belong to equity. फिर चाहे वो आपके हाथ में हो या आप जनरल पब्लिक को बेच दीजिए और ओनरशिप मल्टीपल लोगों के हाथ में आ जाए, इट इज ऑल फाइन, राइट? मगर ओनरशिप हमेशा इक्विटी के फॉर्म में होती है, इक्विटी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, और वो हमेशा 51% होने चाहिए एक्यूमुलेट करके. ओके, आगे बढ़ते हैं. मैं बता रही थी आपको कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको बता रही हूँ कि कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके पास ये 4 सोर्सेज हैं, राइट? वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल, वी हैव रिटेन्ड अर्निंग्स, वी हैव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड वी हैव डिबेंचर्स. डिबेंचर के साथ लगा लेते हैं, लोन्स भी इंक्लूडेड हैं आपके, राइट? अब इन चारों सोर्सेज को जब आपने यूज करके फंड्स रेज किए तो ओवरऑल आप कॉस्ट इनकर करेंगे इसकी, विच इज कॉल्ड KO, राइट? सो विच इज कॉल्ड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कहलाएगी आपकी? KE प्लस KR प्लस KP प्लस KD. दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग प्लस कॉस्ट ऑफ दिस प्रेफरेंस शेयर प्लस कॉस्ट ऑफ डेट. ये चारों की कॉस्ट को आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास जो आएगा, वैल्यू आएगी, वो कहलाएगी KO, विच इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, और नहीं समझ में आ रहा हो तो वापस से वीडियो को देख लीजिएगा फिर से समझने के लिए. ये चीजें आपकी बुक में नहीं लिखी गई हैं, राइट? ये मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज आपको समझना जरूरी है कि हम क्या बात कर रहे हैं. ओके, तो हम आगे चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट में कि मैं बता रही हूँ आपको ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. सो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने कैलकुलेट किया. अब आपको एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना है या डिराइव करना है, एक ऐसा रेशियो प्रोपोर्शन लेकर आना है जिसके अंदर आप ये जानेंगे कि जो ओवरऑल कॉस्ट होनी चाहिए कैपिटल की वो कम से कम होनी चाहिए. कम से कम का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने 10 लाख अपनी कैपिटल के लिए रेस किए, राइट? 10 में से मैंने 5 लाख की रखी इक्विटी, 1 लाख का रखा रिटेन्ड अर्निंग, 6 लाख मेरे कवर हो गए, राइट?
3 लाख का मैंने रखा डेट और 1 लाख रुपए का रखा है मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सब चीजों की कॉस्ट है। डेट को मैंने 3 लाख क्यों रखा? क्योंकि डेट को 3 लाख रखने से मुझे उसका बेनिफिट मिला। क्या बेनिफिट है? डेट इज कंसिडर्ड एज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। और चीपेस्ट सोर्स मैंने इसको क्यों कहा है? क्योंकि एक तो उसको रेज करना बहुत आसान होता है, सस्ता होता है। दूसरा, डेट पे हमेशा एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फिक्स्ड रेट होने की वजह से जब आपको पे करना होगा इंटरेस्ट, तो कंपनी को कितना भी ज्यादा प्रॉफिट क्यों ना हो, कंपनी उतना ही इंटरेस्ट पे करेगी हर बार और बार बार, राइट? इसीलिए आप समझ कर चलिए इस बात को कि जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो फिक्स्ड रहता है, irrespective of the profit that we are earning, if it is increasing or even if we are incurring loss। तो लॉस जब होता है उस केस में वो ही इंटरेस्ट हमारे लिए एक प्रॉब्लम, एक रिस्क बन जाता है। मगर अगर बिजनेस स्टेबल है और इंक्रीजिंग मोड पर है, ग्रोथ मोड पर है, तो आप डेट को ज्यादा प्रेफर करेंगे फॉर रेजिंग फाइनेंस, बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द प्रॉफिट, राइट? इसीलिए जब मैं डेट को 3 लाख रुपए यूज कर रही हूँ और 1 ही लाख रुपए मैं थ्रू प्रेफरेंस शेयर यूज कर रही हूँ एंड 60% इज माई इक्विटी, सो ये जो मेरा स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे जो मेरी कॉस्ट आएगी वो मिनिमम पॉसिबल आएगी, राइट? तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप प्रेफरेंस शेयर को बिल्कुल भी रिमूव कर सकते हैं और 40% पूरा का पूरा आप डेट के थ्रू रेज कर लीजिए, राइट? वो आपकी कॉस्ट को और रिड्यूस कर देगी। मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, जो आप इनकर करने वाले हैं, वो और रिड्यूस हो जाएगा, राइट? तो ये क्यों रिड्यूस हो जाएगा और फर्दर? जरा कल जो मैंने आपको हायरार्की बताई थी वो हायरार्की याद कीजिए। We have got profits which is called our EBIT, earning before interest and tax, माइनस किया उसमें से इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे करने का मतलब है कि इंटरेस्ट आप पे करेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एंड इंटरेस्ट पे होता है प्रॉफिट पर, राइट? सॉरी, इंटरेस्ट पे होता है आपके डेट इंस्ट्रूमेंट पे, और वो जो आप डिटरमाइन करते हैं वो हमेशा टैक्स पे करने से पहले पे किया जाता है। इसीलिए इंटरेस्ट को कहा जाता है कि इट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट पे करने के वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कल क्या हुई थी, आप सबने देखा था, वो कम हो गई थी, राइट? तो टैक्स लायबिलिटी कम हो गई। उसके बाद आप पे करते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और लास्ट में जो अमाउंट बचता है वो पे करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट? सो इफ वी आर रिमूविंग दिस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑल टुगेदर, तो आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी नहीं देना पड़ेगा। एज अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर आप यूज कर लीजिए डेट को और यूज कर लीजिए, राइट? तो मैंने 4 लाख का डेट यूज कर लिया है। अब मुझे 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी जो है वो और क्या होगी, और कम हो जाएगी। तो अब जो बचा हुआ पैसा होगा वो सारा का सारा किसके लिए? इक्विटी के लिए। सो अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम कितना डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे और कितना रिटेन करेंगे, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डिसीजन टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मगर यहाँ के लिए ये मेरा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि मुझे वो सोर्सेज यूज करने हैं जिसमें मेरी इक्विटी का ओनरशिप एटलीस्ट 51% रहे और उसके अलावा 49% तक मैं अपने डेट को यूज कर सकती हूँ इफ माय कंपनी इज स्टेबल एंड इफ माय कंपनी इज ग्रोइंग, because then I would be able to take care of that risk. That risk is that financial risk which I am bearing for the payment of interest as well as principal amount on time. I hope this is clear to all. Anybody who is not understood anything in this, please write down your doubt. This is very important, जो मैंने आपको अभी बताया है कि optimal capital structure क्या होता है, what is KO। अभी किसी को नहीं समझ में आया, पूछिए, अभी पूछिए। I'm waiting for your doubts. If there'll be no doubt, we'll be moving on further. Okay. Tax liability reduction समझ में नहीं आया? Okay, let me explain it again. Okay. अगर आपने कल की क्लास अटेंड की है और कल का वीडियो देखा है तो आप थोड़ा सा मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। आप अगर आप बिल्कुल ही नए हैं अभी, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार क्या होता है। आपने कैलकुलेट किया बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाय प्रिपेयरिंग आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू पीएनएल अकाउंट। मैं कैलकुलेट करती हूँ मेरा नेट प्रॉफिट। फाइनेंस में हम उसको कहेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT, राइट? ये कहा जाता है। अब अर्निंग्स जो आपकी आई
जो मतलब आपके लिए प्रॉफिट है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें से सबसे पहले जो देयर इज अ हायरार्की व्हिच वी फॉलो, राइट? तो वो हायरार्की क्या होती है कि सबसे पहले जो आप अपने अर्निंग्स में से माइनस करेंगे वो आप पे करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करने के बाद जो अर्निंग्स बचेगी उस पे लगाकर आप कैलकुलेट करते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी, राइट? तो अब अगर मैं कहूं इस सिचुएशन में कि मेरा इंटरेस्ट, अगर मैं इंटरेस्ट बढ़ जाए, क्यों? क्योंकि मैंने डेट को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ा दिया है, डेट का कॉम्पोजिशन अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ा दिया है, तो उससे क्या होगा? मेरी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा 100 रुपीज का इनकम था, 100 पे मैं 10 रुपीज इंटरेस्ट पे कर रही थी, इनकम कितनी बची? 90। 90 में मैंने 50% का टैक्स भरा, हाइपोथेटिकली समझा रही हूँ कैलकुलेशन के लिए। 50% का टैक्स भरा, कितना बचा? 45 रुपीज। 45 रुपीज में से अब मैं प्रेफरेंस शेयर को भी दूं 10 रुपए, कितना बचा? 35 रुपीज। तो 35 रुपीज बिलोंग्स टू द इक्विटी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब हम चलते हैं और हम पूरा का पूरा पैसा रेज कर लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर अमाउंट भी थ्रू डेट, राइट? अब मेरे पास वापस इनकम है 100 रुपीज की, मैं पे कर रही थी 10 रुपीज का इंटरेस्ट, अब मैं पे करूंगी 15 रुपीज का इंटरेस्ट, राइट? 15 रुपीज का इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, 100 माइनस 15 इज 85। 85 रुपीज पे आप टैक्स लगाइए 50% का, कितना हुआ? इट विल बी आई थिंक 42.5 रुपीज। तो 42.5 रुपीज का आपने टैक्स पे किया, 42 रुपीज 5 पैसा ही बच गया, किसके लिए? इक्विटी के लिए। क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। पहले उनको मिल रहा था 35 रुपीज, राइट? अब उनको मिल रहा है कितना? 42.5। फर्क आया। यही फर्क मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस इंक्लूजन ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ दिस इंक्लूजन ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, और जिसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलता है? टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट? बाय इंक्रीजिंग देयर शेयर ऑफ अर्निंग्स which they are going to receive in form of dividend, which they may or they may not is a different issue altogether, but यहाँ पे हम समझेंगे कि जो earnings available for equity है वो मेरा increase हो गया by using of debt in the capital structure। तो ये दो वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, इसीलिए आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हुई। दूसरा, आपने डेट को यूज किया है, इसीलिए यूज किया है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, तो उसकी ग्रोथ का जो रिटर्न है वो मल्टीपल फोल्ड में आकर आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाता है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर, and this further leads to reducing our overall cost of capital, which is denoted by KO, and our capital structure is adequate, right? Okay, I think this is clear to all. Anybody still having any doubt, please ask. कोई doubt किसी को भी? Okay, no doubt. Let's move further. It also tries to keep the risk level under control, which achieving effective with achieving effective, यहाँ पे which नहीं आएगा, with होगा, with achieving effective deployment of the funds. Effective deployment of the funds का मतलब क्या हुआ कि हम पैसा ऐसी जगह लगाएंगे, ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। जो भी आप पैसा रेज करते हैं, राइट, उसी में से आपको शॉर्ट टर्म में भी डालना है, यानी कि वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा लगाना है, निकालना है, और उसी के अंदर से आप अपने फिक्स एसेट्स को भी परचेज करने वाले हैं, राइट? तो ये दोनों चीजें आपकी उसी फंड्स में से निकल रही हैं जो आपने रेज की है। अब जब आप अपना फंड रेज कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपने कितना रिस्क लिया है उस फंड को रेज करने के अगेंस्ट, यानी कि क्या कॉस्ट है जो आपको बियर करनी है बेसिकली उस फंड्स की, वही आपका रिस्क है, राइट? तो आपको ये जरूर इंश्योर करना होता है कि आप पैसा ऐसी जगह लगाएं और इस प्रोपोर्शन में लगाएं कि आप उस कॉस्ट को बियर कर पाए बहुत ही इफेक्टिवली, राइट? यानी कि आपको जो भी कॉस्ट आप इनकर करने वाले हैं, चाहे अगर मैं कहूँ कि आप 50 रुपीज की कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो 50 रुपीज शुड बी अवेलेबल with you out of the investment that you are making. If that is not there, that investment is of no use, right? तो यही बताया गया है. So taking care of your risk levels, you should always ensure that there is an effective deployment. Effective deployment of funds means effective investment of funds, which is able to generate so much of return so that you can cover your cost that you are incurring by raising your finance using different components, चाहे फिर वो debt हो या equity हो या preferential capital हो. Okay, this is clear to everyone?
Let's move further. Okay. It also aims at ensuring availability of adequate amount of funds whenever required so that organization does not face the problem of idle funds or shortage of funds. मैंने कल भी बताया था, एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि ये जो अभी हमारा थर्ड वाला है ना पॉइंट, ये वाला पॉइंट बात कर रहा है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में. तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कहती है आपकी कि ऑर्गेनाइजेशन के पास उसको सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करनी चाहिए. फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करने का मतलब हुआ कि आप ये फाइंड आउट कीजिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कितनी की रिक्वायरमेंट है जो आपको रेज करना है, राइट. तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट you will be raising only that much amount of fund which is going to be invested, right. In short term, in long run, doesn't matter. बट बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जितने की जरूरत है उतना ही फंड आप रेज कीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा फंड्स रेज कर लेंगे तो वो फंड रेज करने की कॉस्ट भी तो है जो आपको पे करनी है, तो वो आपको कॉस्ट की तरह आ जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी अ बर्डन फॉर यू, राइट, which you are going to bear because of raising extra funds. So that will result into blockage of funds and becoming a cost. और अगर आप कम funds raise करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको shortage हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपकी requirement थी वो fulfill नहीं हो पाएगी, और वो requirement fulfill नहीं होने की वजह से there will be a reduction in the profit that you were planning to earn, right. तो ये आपका ये थर्ड पॉइंट बता रहा है. Anybody having any doubt in all the three slides that we have just finished? Okay, please tell me any doubt in any of the three slides. Okay, so there is no doubt. Let's move further. Okay, in crux aims जो हमने पिछले साइड पे पढ़ा वो हमारी है aims of financial management, so you'll be able to follow through it. Let's go through the points. So the first bullet point says reduce the cost of funds procured. So reduce the cost of fund procured means reduce the overall cost of capital. That means bring it to the optimum level. Reduction that doesn't mean that we'll take unnecessary risk, but reduction means that whatever is the best situation for our organization, reduce your cost of capital to that much extent, right. So that is called optimal cost of capital. Okay, I've just received one doubt. Let me solve that doubt after after discussing these aims of financial management. Okay, so the next point is keeps risk under control. So keeps risk under control means that you will be taking care of the situation of your organization, that if the profits are growing, use debt, you're ready to take risk. If the profits are not growing, it is unstable, do not go for debt because it will create unnecessary risk and burden for the organization. Then use equity. Okay, next is achieve effective employment of fund. Achieve effective employment of fund means investment decisions should be good enough. That means through it we should be able to generate returns which is greater than the cost of funds that we have already incurred. And last point is ensure availability of funds while avoiding idle funds. So ensure availability of sufficient fund means there should be an effective financial planning that should be done so that we are not facing the problem of idle fund, which is going to result into extra cost which a business may incur, or it should not always face a situation of shortage of funds due to which the profit margin anyway is going to reduce. तो ना ये कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, फंड्स उतने ही होने चाहिए जितने की जरूरत रही है. यही हमने पढ़ा लास्ट स्लाइड में, इसी को आपको क्रिस्प लैंग्वेज में 4 बुलेट पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. नाउ लेट मी टेक द डाउट. सो द डाउट इज, पहले ये पढ़ लेते हैं. कृष्ण ने क्या डाउट पूछा है, कैन दिस हैपन दैट मोर फंड्स आर रेज्ड विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. सॉरी कृष्ण, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. बिना कॉस्ट की कुछ नहीं आता, ठीक है. आप बात कर रहे हैं कि घर वालों से आप लेकर आ जाएंगे, तो वो भी मुझे लगता है कि एक तरह का फाइनेंशियल बर्डन होता है. किस लिए
क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स के थ्रू भी पैसा लगा रहे हैं लेकर, तो वो भी तो इक्विटी है ना। तो इक्विटी को क्या चाहिए, इक्विटी को भी तो रिटर्न चाहिए, जो आप पैसा लगाएंगे उसके ऊपर बेनिफिट मिलना चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इसीलिए देयर इज नथिंग व्हिच कम्स फॉर फ्री in terms of raising of finance, right? So every finance or every source has its own set of risk and cost. Depending upon its risk, depending upon its cost, you have to raise the funds based on the situation of the organization. Okay, I hope Krishna this answer your question. Next है वैदिक, आपने पूछा मैम रिस्क वाला समझ नहीं आया। ओके, कीप रिस्क अंडर कंट्रोल। मैंने आपको क्या बताया अभी अभी कि अगर बिजनेस ग्रोइंग है, मतलब वो प्रॉफिटेबल भी है और प्रॉफिट होने के बाद हर साल प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ मोड पर है। अगर वो ग्रोथ मोड पर है तो इसका मतलब है कि हम रेडी है रिस्क लेने के लिए। दैट मीन्स जो भी फाइनेंशियल बर्डन अगर हमारे पास आता है, हम उसको बहुत इजीली केटर कर पाएंगे। तो अगर इस केस में कहूं कि मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है और डेट के थ्रू मैं फंड्स रेज कर सकती हूँ, तो मैं ले सकती हूँ डेट के थ्रू फंड्स। क्यों? क्योंकि अभी मेरी कंपनी ग्रो कर रही है, तो जो भी इंटरेस्ट लाइबिलिटी बनेगी वो मैं पे कर पाऊंगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, राइट, ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर बिजनेस अनस्टेबल होता या ग्रोइंग नहीं होता या फिर आपका लॉस में होता, तो क्या आप डेट को प्रेफर कर सकते थे? क्योंकि डेट के साथ आता है रिस्क ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विच हैज टू बी पेड इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट। समझिए कि इंटरेस्ट के साथ रिस्क है कि इंटरेस्ट आपको तब भी भरना पड़ेगा जब आपके पास कोई प्रॉफिट नहीं होगा और आपको लॉस हो रहा हो तब भी, राइट? जबकि इक्विटी के साथ ये रिस्क नहीं रहता। तो अगर बिजनेस इस वक्त ग्रोथ में नहीं है, ग्रोथ मोड में नहीं है और अनस्टेबल अर्निंग अर्न कर रहा है, तो उस केस में वी शुड प्रेफर इक्विटी फॉर रेजिंग फंड्स, because there the risk level of payment of dividend is comparatively less as compared to the payment of interest, which is compulsory obligation on the organization to pay, right? I hope Vaidik this clears your doubt. So unstable में equity and stable में debt. Very good लक्ष्य, आपने बहुत easily उसको sum up कर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। I think ये समझ में आ गया है सबको। दिया बच्चे, अभी अभी हमने यही क्वेश्चन को आंसर किया है कि द बिजनेस इज डिक्लाइनिंग देन व्हिच सोर्स शुड बी प्रेफर्ड। बताइए कौन सा सोर्स प्रेफर किया जाना चाहिए? कोई मुझे बता सकता है? इक्विटी। वंडरफुल, यू हैव आंसर्ड इट योरसेल्फ, वंडरफुल इट इज। चलिए आगे बढ़े। अब हम आते हैं डिसीजंस के ऊपर। तो डिसीजंस हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजंस पढ़े थे कल, उसी को आज हम वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। So we have got 3 broad decisions, which are financial investment decision, financing decision, and dividend decision. Investment decision means we are going to invest in 2 forms at 2 places. One is our working capital investment decision, and second one is capital budgeting investment decision. किस प्रपोर्शन में आप इन्वेस्ट करेंगे वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। कई बार क्या होता है कि बिजनेस ग्रोथ मोड में होता है, तो उसे एक नई फैक्ट्री लगानी है मान लेते हैं। तो फैक्ट्री अगर नहीं लगानी है तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट। तो पैसा ज्यादा कहाँ लगेगा? फिक्स्ड एसेट में। दूसरा है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ मोड में है मगर वो एक्सपेंशन में नहीं जा रहा, और वो जिसमें काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बस उसी में काम करते जा रहे हैं। So they will need more of working capital. So in that case, investment means there are 2 avenues which are available. In what proportion are you going to invest your fund in each of the avenue is going to be decided based on the situation in which the firm is in right now. Okay, so let's move to the next slide so as to go further in detail. पढ़ते हैं इसे। I think this is something which I have already discussed with you, so you will all be able to follow it very clearly. Let's go through it one by one. Okay, so investment decision, it relates to how the firm's funds are invested. So firm's fund means the fund which we have organized, the fund which we have raised, right? So it relates to how the firm's fund are invested in the different assets. डिफरेंट एसेट्स मींस या तो करंट एसेट में करेंगे या फिर आप करेंगे फिक्स्ड एसेट में। सो करंट एसेट इज वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड एसेट इज कैपिटल बजटिंग। ओके,
so that they are able to earn the highest possible return for their investors, right? I hope this is clear कि जो भी आप जहां भी पैसा लगाते हैं उस पे आपको मिनिमम इतना रिटर्न मिलना चाहिए कि जो आपकी कॉस्ट जो है, जो आपने इनकर की है फॉर रेजिंग द फंड, इट शुड बी एबल टू कवर इट्स कॉस्ट. वेरी मच क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट, इट कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. जैसे मैंने पहले ही बताया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन and also known as capital expenditure decision. It involves using the funds for long term basis. Long term means lambe samay ke liye, which is more than a year. Example, making an investment in new machine, replacing an existing one, or opening a new branch, etc. Anybody who has not understood any point here in this slide, please write your doubt in the chat box. Anybody? I think सबको समझ में आ रहा है. I hope that I am not moving fast. We have already discussed these points very much in detail yesterday, and it is being taken, that session was being taken so as to make you comfortable with the concept that we are going to deal today, right? So I hope this is going very smoothly with everyone. But फिर भी किसी को कोई doubt हो तो पूछिए. Okay, no doubt as of now. So